Hello, and welcome to another episode of Desi Fire podcast. I'm your host, Ravi Handa, and on this particular channel, we talk about financial independence and early retirement. As a part of that, a lot of our investing is done into equities, real estate, debt, and mutual funds. But there are alternative options which are popping up, especially over the last few years. And one of those options is Bitcoin. Today we have with us Abhay, and I always like talking to people who are from Jaipur and broadly in the same age range that I am. Abhay fits on both of those criteria. He has studied from Jaipur, but currently he's settled in Seattle. He has started a company called GetBit.in, which helps Indians buy Bitcoin. I'll not take too much of your time. I'll let Abhay introduce himself. So, Abhay, can you tell us a little bit about your background and also a little bit about what GetBit does? Great. Thank you, Ravi, for the opportunity to speak to you and to your listeners. Super excited to share about my journey. So, जयपुर की कहानी तो ऐसी है कि मैं महाराजा कॉलेज से मैंने बीएससी की. इंजीनियर बनने का बड़ा ख्वाब था. 1-2 साल कोशिश करी, लेकिन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में हुआ नहीं. तो बीएससी महाराजा कॉलेज से की, गोखले हॉस्टल में रहते थे. और बीएससी करने के बाद फिर देन लाइफ टुक मी टू वेरियस प्लेसेस एंड आई हैव बीन वेरी थैंकफुल to God and the opportunities God has provided. And currently, as you rightly mentioned, I run GetBit, which is a app. So we have an Android app and a web-based service where customers in India can come and easily buy Bitcoin in 3 steps. Okay, and what are those 3 steps? Yeah, so those 3 steps are very simple. You first create an account and आपने एक बार अकाउंट बना लिया, फिर आप उसमें अब यूपीआई से पैसा चढ़ा दें. जितना भी आपको खरीदना है, मिनिमम 200 रुपए का आप खरीद सकते हैं. And then there is a simple button of buy Bitcoin and you bought Bitcoin. That's as simple as that. Step number 1, create an account. Step number 2, load money via UPI. Step number 3, buy Bitcoin. Fair enough. So, simple enough process. But that is with the assumption that कि भाई Bitcoin खरीदना है. So, a more fundamental level question would be that why should anyone buy Bitcoin? What is the future of Bitcoin? Why should anyone be even bothered about it as an asset class? Based on where I am in my understanding of Bitcoin and my thinking, I believe every individual, every family, every company, every bank, every insurance company, every country will buy Bitcoin. It is just a matter of time. It is not even a question of if, it's when. And why I think so is that अगर आप आई वाज जस्ट लिसनिंग टुडे मॉर्निंग ओनली कि 1995, 98 या 2000 में आप अर्ली अगर किसी को बोला होता कि एक ईमेल करके चीज़ है, आप अपना या इंटरनेट करके चीज़ है एंड एवरीवन विल हैव अ वेबसाइट, तो लोग बोलते नहीं नहीं हमारी तो दुकान है, हमको वेबसाइट की क्या जरूरत है, हम तो रेस्टोरेंट चलाते हैं, हम अपनी वेबसाइट हम अपनी कपड़े की दुकान करते हैं. अब आज की तारीख में इफ यू सी दैट वेदर यू आर रनिंग अ रेस्टोरेंट, वेदर यू आर रनिंग अ बिजनेस, एवरीवन नीड्स अ वेबसाइट. सो जो इंटरनेट ने किया इंफॉर्मेशन के लिए, वही बिटकॉइन कर रहा है फॉर एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. एंड जैसे 15 साल इंटरनेट अगर आप 2000 में बात करें तो लोग बोलते थे अरे ये तो एक फैड है, बड़े लोगों की चीजें हैं, बड़े लोग इंटरनेट पे करते हैं या टेक्नोलॉजी वाले इंटरनेट पे करते हैं. अगर आज की बात करें तो चाहे आप मैंने छोटी दुकान चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं या बिजनेस करते हैं, इंटरनेट इज सो परवेसिव. चाहे ये कॉन्वर्सेशन जो हमारा हो रहा है वो भी इंटरनेट की बदौलत हो रहा है. व्हाट्सएप हैज बिकम लाइक द कॉमन टूल दैट एवरीवन यूजेस. सो इंटरनेट हैज बिकम लाइक डे टू डे टूल एंड हम सोचते भी नहीं है कि इंटरनेट यूज हो रहा है. इट इज लाइक ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड कि बैकग्राउंड में चल रहा है. सो दैट इज द सेम थिंग विच इज हैपनिंग कि जो मॉनेटरी सिस्टम है आज की तारीख में, एवरीथिंग फ्रॉम सेविंग्स टू हाउ यू एक्सचेंज वैल्यू एक करंट सिस्टम में बना हुआ है. और वो सिस्टम जो है वो वी आर सीइंग रैपिडली बीइंग इवॉल्विंग एंड चेंजिंग.
एंड अगर चीपर बेटर फास्टर सिस्टम कोई चीज आती है, एज द टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स, देन वो चीपर फास्टर सिस्टम बेटर अपने आप अडॉप्शन कर्व के थ्रू अडॉप्ट हो जाता है। चाहे आप किसी भी चीज का एग्जांपल लें, जब आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो पहले हम मोमबत्ती एंड लालटेन जलाते थे। जब एक बार बिजली आई, जब शुरू में बिजली आई तो सब कोई बोलते थे अरे इससे तो सब लोग इंसान जल जाएगा, मर जाएगा, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ फोबिया अराउंड इट। बट एक बार बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी वाज चीपर फास्टर बेटर देन बर्निंग अ कैंडल एंड lantern, so once adoption curve takes place, everyone starts using electricity. Similarly, अगर आप बताएं कि हम चिट्ठी तो सबको ही लिखते थे, शायद हम आपको और मुझे याद होगा, कुछ लोगों को याद नहीं होगा चिट्ठी क्या चीज होती है, बट हमें तो पोस्ट कार्ड भी याद है 25 पैसे वाला। सो वो पोस्ट कार्ड लिखते थे और चिट्ठी लिखते थे। लेकिन आज की तारीख में चिट्ठी इज नो मोर देयर, कोई चिट्ठी नहीं लिखता है, तो बिकॉज ईमेल इज चीपर फास्टर बेटर। अगर आप बात करें कि हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे, पैदल चल के जाते थे या घोड़े पे चढ़ के जाते थे, एक बार गाड़ी आ गई तो एवरीवन नाउ यूजेस सम फॉर्म ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट, वेदर इट इज स्कूटर और वेदर इट इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और खुद की गाड़ी, तो चीपर फास्टर बेटर बिकॉज वो सो सिमिलरली एवरीथिंग ऑन मॉनेटरी टेक्नोलॉजी becomes cheaper faster better over bitcoin as a protocol। एंड ये एक ओपन प्रोटोकॉल है, लाइक इंटरनेट एक ओपन प्रोटोकॉल है, किसी एक इंसान का या ग्रुप ऑफ पीपल का या एक देश का नहीं है। सो इंटरनेट यूएस का नहीं है, इंडिया का नहीं है, चाइना का नहीं है। इंटरनेट एक प्रोटोकॉल है, जो भी कंप्यूटर में उस प्रोटोकॉल को समझता है, उस प्रोटोकॉल के थ्रू अपना कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता है इंटरनेट। सिमिलरली बिटकॉइन एक ओपन प्रोटोकॉल है, सो किसी एक देश का नहीं है, किसी एक कंपनी का नहीं है, किसी एक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स का नहीं है। और ऐसा ओपन प्रोटोकॉल जब भी आता है तो वो बहुत रैपिडली अडॉप्ट हो जाता है। तो बिकॉज वी आर स्टिल एट द अर्ली स्टेजेस ऑफ अडॉप्शन, तो ऐसा लगता है ये बहुत ही नीश और नॉवल चीज है। वी आर रियली अर्ली इन दिस, बट दैट इज व्हाई आई बिलीव दैट बिकॉज इट इज चीपर फास्टर बेटर टेक्नोलॉजी for monetary both savings and transfer of value, that is why everyone will adopt it. Fair. So in the long term, your central argument, please correct me if I'm wrong, is as technology comes into the money aspect, क्योंकि ये cheaper है, faster है, ये इसका adoption काफी बढ़ जाएगा। But दो मेरे इसके ऊपर questions हैं। पहला तो बॉस, इन सब चीजों को अडॉप्ट होने में इंटरनेट का अडॉप्शन काफी फास्ट था और उसका इम्पैक्ट हम लोग देख ही रहे हैं, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल बिकॉज मनी इज इन्वॉल्व हियर कि इसके एक तो अडॉप्शन के अंदर काफी टाइम लगेगा। तो भाई उतने टाइम में अगर मैं मर ही गया तो फिर क्या फायदा है? मतलब इफ समथिंग टेक्स 30 years to get the benefits out of it, it doesn't really impact a 40-year-old. So that's part one. And the second part being, I did read about something like Bitcoin ETFs being launched. So which is something that is happening currently. I think January या Feb में ही उनके वो ETFs launch हुए थे. So this is my two-part question. पहला तो कि आज की डेट में क्या हो रहा है, which is with respect to the ETFs. And second, do you think कि इसमें 30 साल लगेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है और the adoption would be a lot faster, like the internet has been fairly करेक्ट। सो पहले दूसरे सवाल का आंसर देता हूँ। द अडॉप्शन रेट ऑफ दिस, एंड यहाँ पे हम अपना नोट कर सकते हैं, वी हैव अ कर्व जिसमें इंटरनेट का अडॉप्शन रेट एंड बिटकॉइन का अडॉप्शन रेट का ग्राफ है, एंड वी कैन शो इट टू ऑन द स्क्रीन सेइंग हाउ द टू ग्राफ्स आर गोइंग, एंड इट इज गोइंग एट अ very similar pattern but faster than internet. So Bitcoin adoption is following a very similar pattern to internet but faster rate. So the expectation is that internet ka adoption andazan from 100 million to a billion people happened over a 10-year period. So and अभी बिटकॉइन का अडॉप्शन 100 मिलियन लोगों पे है। 100 मिलियन से बिलियन पीपल, इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस एट द रेट ऑफ ग्रोथ विच बिटकॉइन इज ग्रोइंग शुड हैपन इन 3 years. अच्छा, so instead of 10 years it should happen in 3 years. तो हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ टाइम में इसका इम्पैक्ट हमें पता चलेगा। और अभी क्या हो रहा है, वो जो ETFs वगैरह चल रहे हैं उनके बारे में थोड़ा बता पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। सो जब तक ETF नहीं लॉन्च हुआ था
तो क्या था कि बिटकॉइन खरीदने के लिए लार्जली क्या होता है कि जब भी कोई नया एसेट क्लास आता है तो बड़ा इंस्टीट्यूशनल पैसा जो है उस एसेट क्लास पे पहले जाता है। हिस्टोरिकली यही हुआ है। अगर आप आईपीओ की भी बात करें, जब पहले कैपिटल मार्केट बना है तो पहले बोलते थे कि रिटेल इन्वेस्टर के पास रिस्क है, रिटेल इन्वेस्टर को समझ में नहीं आता है, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसके पास बड़ा पैसा है, जिसको रिस्क समझ में आता है, उसको पहले चीज समझ में आनी चाहिए एंड दे कैन इन्वेस्ट एंड रिटेल इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड। बिटकॉइन में ये बिल्कुल ही उल्टा हुआ है। ये ऐसा हुआ है कि इट स्टार्टेड एज एन ऑर्गेनिक, साइबर पंक्स करके एक लोग थे, और ये टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि एक दिन सडनली आ गई है। इफ यू सी द एज इन द डेवलपमेंट ऑफ बिटकॉइन, देर इज मल्टीपल अटेम्प्ट्स विच हैव बीन मेड इन ट्राइंग टू मेक समथिंग लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक कैश वर्क, एंड फाइनली ऑल पीसेज ऑफ इट। सो सबसे बेसिक बिल्डिंग कंपोनेंट इसका जो है क्रिप्टोग्राफी है। क्रिप्टोग्राफी जो है वो बेसिक कंपोनेंट है जिससे सारी इंफॉर्मेशन सिक्योर होती है। इवन अगर हम बैंक का जो पासवर्ड होता है उसके पीछे भी क्रिप्टोग्राफिक, अगर आपका गूगल का पासवर्ड, बैंक का पासवर्ड होता है, उसके पीछे भी क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी एट अ सर्टेन लेवल आई, उसके बाद अदर कंपोनेंट्स मिलके फिर ये जो सतोशी नाकामोटो करके सूडोनिमस पर्सन है, उन्होंने बिटकॉइन एक प्रोटोकॉल बनाया और वाइट पेपर के साथ लॉन्च कर दिया 2009 में। अब 2009 में उन्होंने लॉन्च किया, उनकी कम्युनिटी जो थी, जो साइबरपंक्स लोग थे, उनकी ईमेल लिस्ट थी, उसमें से अडॉप्शन चालू हुआ। तो देयर वाज नो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, नथिंग इन दिस। ये एक ऑर्गेनिक मूवमेंट से चालू हुआ, और वहां से जैसे लोगों ने अडॉप्ट किया, तो अगर आप बहुत पुराना ईमेल भी देखेंगे जिसमें सतोशी ने बोला है कि ये आपका ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एंड नो वैल्यू है, क्योंकि ये एक तरह से गेमिंग टोकन करके समझ लीजिए कि ऐसे करके चालू हुआ। तो उसमें एक जगह स्टेटमेंट है कि सतोशी का एक लाइन है विच सेज दैट शायद ये बहुत वैल्यूबल हो जाएगा, अगर ये वैल्यूबल हो जाएगा तो आप थोड़ा सा अपने पास रख लें। इस तरह से ये रिटेल पे चालू हुआ ना। 2013-14 पे एप्लीकेशन, जब 2013-14 पे ये टेक्नोलॉजी समझ में आने लगी लोगों को कि ये इतना बड़ा इनोवेशन है, तो 2013-14 में पहली बार एप्लीकेशन गया था कि इसको ईटीएफ का रूप दिया जाए। ईटीएफ का रूप दिया जाए तो इससे क्या होता है कि इंस्टीट्यूशनल पैसा जो है एक ऑर्गेनाइज तरीके से आता है, वो कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस करते हैं कि ये जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहाँ स्टोर हो रहा है, वो सिक्योर है कि नहीं। तो वो 2013-14 से फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर ईटीएफ गया था, वो जो जाके 2024 में अप्रूव हुआ। तो 2024 तक किसी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को अगर बिटकॉइन में पैसा डालना था तो उसको ही डज नॉट हैव अ इजी मेथड। बट ये जब 2024 10 जनवरी को ईटीएफ अप्रूव हो गया, एक साथ 10 कंपनियों ने ईटीएफ अप्रूव कराया, इंक्लूडिंग द लार्जेस्ट एसेट होल्डर ऑफ द वर्ल्ड विच इज ब्लैक रॉक, जिनके पास $10 ट्रिलियन का एसेट बेस है। और वो ईटीएफ अभी लैरी फिंक जो ब्लैक रॉक के सीईओ, उन्होंने कुछ दिनों पहले अभी इंटरव्यू दिया था सीएनबीसी में, उन्होंने बोला कि बिटकॉइन ईटीएफ इज द लार्जेस्ट और द फास्टेस्ट ग्रोइंग ईटीएफ इन द हिस्ट्री ऑफ ईटीएफ। IBIT is the fastest growing ETF in the history of ETFs. And that is where institutional capital is now coming in. So just to repeat, हिस्टोरिकली क्या हुआ है, कभी नया एसेट क्लास आता है तो इंस्टीट्यूशनल कैपिटल पहले आता है और रिटेल बाद में आता है, क्योंकि रिटेल को बाद में पता चलता है, रिटेल की रिस्क एपेटाइट कम होती है और वो बाद में आते हैं। बट ये बिटकॉइन में उल्टा हुआ है, ऑर्गेनिक ग्रोथ से, रिटेल से ये चालू हुई है, एंड नाउ इंस्टीट्यूशनल कैपिटल नाउ हैज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड ऑफ कमिंग इन, एंड दैट इज व्हाई लॉट ऑफ डिमांड इज कमिंग थ्रू ईटीएफ, एंड दैट इज ऑल्सो लीडिंग टू अ लॉट ऑफ प्राइस मूवमेंट। Fair. So, for those of our listeners who do not know, ETFs are essentially exchange traded funds. ये इंडिया के अंदर भी आपको मिलते हैं। मान लीजिए कि आपको इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए एक अलग ETF रहता है, जैसे कि निफ्टी के ETFs हैं। आपको मान लीजिए रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना है तो रियल्टी के अपने अलग ETFs रहते हैं। वैसे ही यूएस के अंदर अब बिटकॉइन के ETFs भी शुरू हो गए हैं, जो कि जैसा कि अब बता रहे हैं प्राइमरीली वो इंस्टीट्यूशनल्स के लिए हुए हैं।
अगर इंस्टीट्यूशनल्स को हम लोग थोड़ा छोड़ते हैं और हम लोग मेरे और तुम्हारे और रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें, तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनका ये है कि हाँ भैया, मतलब बिटकॉइन है, बिटकॉइन के अलावा कुछ नहीं है। और कुछ दोस्त लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूँ कि अरे यार बिटकॉइन का भाव तो ऊपर चला गया, नीचे चला गया, तो उनका जवाब आता है बिटकॉइन का भाव ऊपर नीचे नहीं है, डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है, वन बिटकॉइन इज स्टिल बिटकॉइन। On the other spectrum, I also have friends and very smart and very learned people कि अबे ये तो सब जो है पूरा स्कैम है, इसके अंदर तुम कहाँ पैसा डाल दो पूरा डूब जाएगा। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट कि हाउ शुड रिटेल इन्वेस्टर्स ए लुक एट, मतलब कि क्या होना चाहिए, एंड इन योर एक्सपीरियंस बिकॉज यू आर रनिंग अ कंपनी इन द बिटकॉइन स्पेस, व्हाट डू यू टिपिकली सी इन्वेस्टर्स का क्या स्टेटस रहता है? क्या वो डरते हैं या वो एकदम फुल ऑन हाँ जी मेरा सारा पैसा बिटकॉइन में लगा दो उस टाइप के रहते हैं? सो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस विद रिटेल हैज बीन इन दिस रिगार्ड? या सो ग्रेट क्वेश्चन अगेन। तो रवि, इसमें क्या है, व्हाट वी सीन इज दैट, एंड ये माइकल सेलर एक बिटकॉइन के बहुत बड़े ओजी हैं, एंड उन्होंने ये फ्रेमवर्क शेयर किया था कि जो भी बिटकॉइन के बारे में समझता है या जानने की कोशिश करता है और जानता है, वो 5 स्टेजेस का एक स्पेक्ट्रम है। वो स्पेक्ट्रम का स्टार्टिंग पॉइंट अगर लेफ्ट मोस्ट आप बोलें तो जैसे लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, वैसे ये बिटकॉइन अंडरस्टैंडिंग का एंड इन्वेस्टमेंट का स्पेक्ट्रम है। तो इन द लेफ्ट साइड ऑफ इट स्टार्टिंग पॉइंट पे है कि वो डिनायर है कि भाई ये तो पॉन्जी स्कीम है, ये ट्यूलिप मैनिया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो डिनायर है। वो डिनायर के बाद नेक्स्ट स्टेज जो आता है वो है स्केप्टिक। अच्छा भाई, मुझे समझ में आ गया है, थोड़ा समझ में आता है, तुम जो बोल रहे हो और मैंने भी पढ़ लिया है, लगता तो बहुत बढ़िया है, बट इट इज टू गुड टू बी ट्रू। इसको सरकार बंद कर देगी, यूएस की सरकार बंद कर देगी, इंडिया की सरकार बंद कर देगी, आरबीआई बैन कर देगा, ये सो वो आएगा स्केप्टिक पे। फिर ट्रेडर, तो मैं ट्रेड कर लेता हूं इसको कि भाई मैं गेट इन एट लो एंड गेट आउट एट हाई, वो जैसे भी जैसे ही दाम बढ़ेगा मैं निकल जाऊंगा, तो वो ट्रेडर बनता है। ट्रेडर बनने के बाद इन सब जर्नी में ना हर एक समय जब वो थोड़ा थोड़ा समय लगाना चालू कर देता है और उसके बारे में पढ़ने लग जाता है, उसके जैसे अगर मैं मारुति कार खरीदता हूँ तो मुझे सारी गाड़ी मारुति दिखने लग जाती है या मैं हुंडई खरीदता तो मैं सारी हुंडई दिखने लग जाती है। वैसे ही जब आप ये चीज़ करते हो तो आपको और बिटकॉइन की चीज़ें पता चलती है और आप पॉडकास्ट देखते हो, किताब पढ़ते हो। सो देन यू मूव फ्रॉम ट्रेडर टू इन्वेस्टर कि यार अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज जो है ये परपेचुअल नेक्स्ट 10 साल 15 साल इन्वेस्टर बन जाता है कि ये 10 साल 15 साल चलेगी, तो मैं इसमें शॉर्ट टर्म के लिए नहीं डाल रहा हूं, मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए डाल रहा हूं, वेल्थ क्रिएशन होगा। और देन जब वो लास्ट स्टेज में, उसके बाद जब वो इन्वेस्टर बन जाता है, उसके बाद लास्ट स्टेज में जाता है वो मैक्सिमलिस्ट कहलाते हैं, जो बोलते हैं कि इससे दुनिया बदल जाएगी। माने ये दिस माइट बी फिक्स द मनी फिक्स द वर्ल्ड, एक हम टर्म यूज करते हैं कि जो पैसा है वो मूल स्रोत है ह्यूमन प्रोग्रेस का या मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस का। एंड वो पैसा अगर गलत इंडेक्स्ड है तो सब कुछ बिकॉज उससे निकल के आता है, तो हर चीज में उसकी टॉक्सिसिटी फैल जाती है। एंड वो अगर पैसा प्योर हो जाएगा और वो किसी के कंट्रोल के और मैनिपुलेशन के अंदर नहीं रहेगा, देन लॉट ऑफ दैट विल गेट। तो वो मैक्सिमलिस्ट है। एंड ये सब कोई, इवन मी, स्टार्टेड एज अ डिनायर। तो हर इंसान, तो इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन, इफ यू थिंक इट्स अ पॉन्जी स्कीम, please don't feel, and that person is not my that person is also my friend. I was that person, and just मैं 2013 में जब मुझे बिटकॉइन के बारे में पता चला था, I was that person. And everyone takes a different time period, different journey depending on their understanding. मेरा खाली एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, आप जिस भी जगह हैं, आप डिनायर पे हैं या आप स्केप्टिक पे हैं या फिर आप ट्रेडर पे हैं या आप इन्वेस्टर पे हैं, आप थोड़ा थोड़ा समय इसके बारे में लगाएं। जितना आपको मिलता है, जो भी स्रोत है आपके पास, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे ऐसे पॉडकास्ट हो, चाहे किताबें हो, जिस भी चाहे, एंड ओपन माइंड रख के थोड़ा कोशिश करें कि ये इतने लोग जो कर रहे हैं उसमें क्या है। शायद कोई चीज होगी इसलिए इतने लोग ये कर रहे हैं। एंड
आप इस साइकिल के थ्रू जाएंगे और आप एक सेल्फ असेसमेंट करें अपना कि मैं क्या हूं, मैं डिनायर हूं। ठीक है, आप डिनायर हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड आई कैन गिव अ गारंटी कि अगर आप डिनायर हैं तो आप डिनायर से कुछ समय के बाद स्केप्टिक बनेंगे। आप स्केप्टिक हैं तो आप स्केप्टिक के बाद ट्रेडर बनेंगे, और आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर के बाद इन्वेस्टर बनेंगे, और इन्वेस्टर के बाद मैक्सिमलिस्ट बनेंगे। वी नो फॉर गारंटी दैट 2035 2036, तो अभी से लेके नेक्स्ट 10-12 साल इज व्हाट वी थिंक इज द गोल्ड रश फॉर बिटकॉइन इक्वलेंट। तो गोल्ड रश ऑफ बिटकॉइन क्या है? क्योंकि अभी जितना बिटकॉइन ऑलरेडी इन सर्कुलेशन है, बाय 2036 99% of what Bitcoin will exist will be in the circulation, and ye information about it will increase. So this is when the rapid increase in price will happen, and that rapid adoption will happen, and by 2036 everyone or a significant portion will be in the maximalist camp. तो टोटल अडॉप्शन हो जाएगा। तो आप जिस भी कर स्टेज पे हैं, आप अपने आप को एक सेल्फ अवेयरनेस करें कि हाँ आप कहाँ पे हैं, एंड एक कुछ छोटा एलोकेशन, वट एवर इज योर राइट थिंग। बिकॉज हम गेटबिट चलाते हैं एंड वी आर बिटकॉइन ओनली, देन वी वुड रेकमेंड कि आप गेटबिट पे आके अपना अकाउंट खोलें और आप 200 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मेरे ख्याल से जो आपके लिसनर होंगे, 200 रुपए आजकल तो स्टारबक्स की कॉफ़ी पियो तो आप 500 रुपए लग जाते हैं। तो आप कुछ भी अमाउंट से स्टार्ट करें, और फिर एंड साइमल्टेनियसली आप पढ़ते रहें। एंड आप कभी भी बेच सकते हैं, 100% लिक्विड मार्केट है। और बिकॉज अभी जो टाइमिंग है, जो हाविंग की हम आगे बात करेंगे, हाविंग अभी होने वाली है, जैसे एज वी आर रिकॉर्डिंग ऑन 18th, एंड कल नेक्स्ट 48 आवर्स में हाविंग होने वाली है। तो देर इज अ 4-year साइकिल, एंड वो 4-year साइकिल में ये 2024 इज वन साइकिल, एंड देन नेक्स्ट साइकिल इज 2028, एंड हर 4-year साइकिल में 10x प्राइस जाती है। तो टाइमिंग वाइज ऑल्सो दिस इज अ वेरी गुड टाइमिंग। सो दैट इज व्हाट आई वुड रेकमेंड एवरी रिटेल इन्वेस्टर कि आप ये 5 स्टेजेस में से कहाँ हैं, आप सेल्फ असेसमेंट करें, और आप थोड़ा ओपन माइंड रखें, थोड़ा पढ़ें, और उसके बाद वेन एवर यू थिंक यू आर रेडी, please come to GetBit and start your Bitcoin purchase. So, for the listeners, I will be honest, मैं personally अभी skeptic की stage पे हूँ, denier नहीं हूँ. I have been a denier for a very, very long time. I think I first heard about Bitcoin somewhere around 2013. First purchased it in around demonetization के आसपास मैंने पहली बार खरीदा था, but those are all small amounts. Over the last post-COVID, मैंने अपना exposure Bitcoin and crypto के अंदर overall it has gone to something like 1 to 2% of my portfolio है। तो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मेरे को अभी भी जो अभय डाउट्स के बारे में बात कर रहा है कि सरकार जो है वो रोक देगी और वॉर्स हो जाएंगी और वो सब, मेरे को वो सब डर है। एंड I am talking to more and more people about crypto, about Bitcoin, ताकि मेरा ये स्केप्टिसिज्म दूर हो सके। या तो मैं वापस से वो डिनायर वाली स्टेज में चला जाऊं, या मैं वापस से एडवांस करके इन्वेस्टर वाली स्टेज में चला जाऊं। ट्रेडिंग तो मुझसे होगी नहीं, एंड दैट्स व्हाई एसेंशियली आई एम डूइंग दिस। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैंने कुछ टाइम पहले अपने एक दोस्त के साथ में और क्रिप्टो रिलेटेड पॉडकास्ट किया था, उसका भी एपिसोड इस वीडियो की लिंक में आपको मिल जाएगा, सो डू वॉच दैट। नाउ कमिंग टू व्हाट अभय यू वर टॉकिंग अबाउट, मेरे को थोड़ा सा फॉलो अप क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन व्हाट यू सेड। एक तो यू सेड दैट बाय 2036 99% ऑफ बिटकॉइन वुड कम इनटू सर्कुलेशन। डू वी नो कि आज की डेट में कितना परसेंट सर्कुलेशन में, आज 90% सर्कुलेशन में है या 50% सर्कुलेशन में है? डू वी हैव दोस नंबर्स? यस, वी हैव दोज नंबर्स, एंड व्यूअर्स को हम स्क्रीन पे दिखा सकते हैं कि ईच हाफिंग साइकिल पे कितने हैं। अभी हम अबाउट 93-94% के बीच पे हैं इन सर्कुलेशन, and in the next 10 years 6%, which is the remaining 6% till we get to 99%, and then for 99 to 100 will be the next 100 years में वो 99 से 100 वो last 1% next 100 साल में circulation में आएगा। तो for all practical purpose it would all be in circulation by 2036। और ये
जो आप बता रहे थे कि एक हाविंग है जो कि हम लोग अभी ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आई थिंक जब तक ये वीडियो रिलीज होगा तब तक वो हाविंग हो चुकी होगी। कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट मोर अबाउट कि क्या होती है और इसका मोर इम्पोर्टेंटली एज अ स्केप्टिक और एज एन इन्वेस्टर मेरे क्रिप्टो पोर्टफोलियो पे इसका क्या फर्क पड़ता है, या मेरे बिटकॉइन पोर्टफोलियो पे हाविंग का क्या फर्क पड़ता है? अगर आप बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन जो है, हाविंग इज़ अ प्रोसेस जहां हर 4 साल के बाद एक कॉन्सेप्ट है जो अगर आप बिटकॉइन समझने की कोशिश करें तो एक वर्ड बहुत कॉमनली यूज होता है, ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन क्या है कि जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं 10 मिनट में, पिछले हर 10 मिनट में एक ब्लॉक बनता है। ब्लॉक क्या है, आप समझ लें कि एक पेपर में अगर आपने 10 ट्रांजैक्शन लिख लिए, उसका एक ब्लॉक बना लिया तो एक ब्लॉक है, एक के पीछे एक कड़ी से ब्लॉक जुड़ा हुआ है, तो वो ब्लॉकचेन इसीलिए कहलाता है, या ये वर्ड यूज होने लग गया है। तो वो ब्लॉक जो है उसको बनाने के लिए कुछ कंप्यूटिंग एनर्जी यूज होती है, और वो जो कंप्यूटिंग एनर्जी यूज करके उस ब्लॉक को ऐड करते हैं वो लोग माइनर कहलाते हैं। और वो माइनर जब वो ब्लॉक ऐड करते हैं तो वेन एवर अ न्यू ब्लॉक इज एडेड, उस ब्लॉक के साथ एज अ ब्लॉक रिवॉर्ड या ब्लॉक सब्सिडी, दोनों वर्ड यूज होते हैं, उस माइनर को जो वो ब्लॉक जीता है, वो जो या ब्लॉक ऐड किया है, उसको एज अ रिवॉर्ड मिलता है। दैट इज हाउ ऑल बिटकॉइन फ्रॉम द फर्स्ट बिटकॉइन to all 93 which is in circulation was always given। तो जब शुरू में सतोशी ने इस पहली बार इस बिटकॉइन प्रोटोकॉल को लॉन्च किया था तो ब्लॉक रिवॉर्ड या ब्लॉक सब्सिडी थी 50 बिटकॉइन इन एवरी बिटकॉइन, एवरी ब्लॉक। वो हाविंग में आधी होती जाती है, तो 2012 में 50 से हो गई 25, अब 2016 में हो गई 25 से 12.5, और 2020 में हो गई 6.25, अब हो रही है 3.125। So that is what is halving, and that is how the new bitcoins in circulation get added, and that is where there is reduction in the number of bitcoins which will get the miners will get rewarded। इस concept का पूरा को halving बोलते हैं। तो अब है मेरे को समझ में आया हाविंग क्या होती है, बट इससे बिटकॉइन के प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो अगर आप प्राइस की बात करें तो जनरली एनीथिंग की प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन डिमांड एंड सप्लाई। तो हिस्टोरिकली क्या है कि हर 10 मिनट में एक ब्लॉक बनता है, वो ब्लॉक के साथ ब्लॉक रिवॉर्ड सब्सिडी बनती है, और आप बिटकॉइन इन सर्कुलेशन आते हैं। तो प्री हाविंग आज की तारीख में रोज के 24 घंटे में 900 बिटकॉइन इन सर्कुलेशन एडिशनल आते हैं। ये हाविंग के बाद 450 हो जाएंगे। तो क्या होता है कि अगर आज की तारीख में 900 बिटकॉइन है और 900 बिटकॉइन के वजह से प्राइस इक्विलिब्रियम जो है वो $70,000 $60,000 $70,000 के बीच में चल रहा है, तो वो एक तरह से क्या है कि सप्लाई शॉक आ जाता है कि सप्लाई जो है 900 से 450 हो गई। तो सप्लाई शॉक आता है, तो अगर डिमांड मार्केट में जो भी डिमांड है मार्केट में, सो वो डिमांड मार्केट में उतनी ही रहती है, और सप्लाई शॉक की वजह से प्राइस ऑटोमेटिकली धीरे धीरे क्रीप अप होने लगती है। तो आई विल गिव एन एग्जांपल, लेट्स से गोल्ड की बात करें, चाहे आलू प्याज की बात करें, चाहे किसी भी चीज को, तो डिमांड सप्लाई के बेस पे प्राइस डिटरमिन होता है। तो अगर सप्लाई बढ़ जाएगी और सेम डिमांड रहेगी तो प्राइस कम होगी, अगर सप्लाई कम हो जाएगी और सेम डिमांड रहेगी तो प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि सेम सप्लाई के लिए ज्यादा खरीदार और उतने ही खरीदार हैं, बट सप्लाई कम हो गई है। सो दैट इज द वन डिटरमिनिंग फैक्टर विच इज देयर, बिकॉज ऑफ विच हाविंग के साथ ये हर हाविंग साइकिल पे प्राइस मोमेंटम आता है। बट ये इमीडिएटली हाविंग के दिन नहीं आता है, इट टेक्स अबाउट 6 months ऑफ टाइम, बिकॉज बाय द टाइम द प्राइस इक्विलिब्रियम कम्स इनटू पिक्चर बाय विच द डिमांड आउटस्ट्रिप्स द सप्लाई, वो समय लगता है थोड़ा, और हिस्टोरिकली समय लगता है। This is the first time when ETF is also playing a role in it. So it is hard to predict कि price movement क्या रहेगा, but this is the fundamental reason from first principles basis कि supply कम हो रही है, demand उतनी है, उसकी वजह से price momentum आता है और price increase होती है।
हिस्टोरिकली इन अ 10 ईयर साइकिल, इन अ 4 ईयर साइकिल, इन बिटवीन हार्विंग, जो आप हार्विंग के पहले लोएस्ट प्राइस होती है उसका 10x नेक्स्ट हार्विंग के पहले एक ऑल टाइम हाई साइकिल टच होता है। तो अगर वही फॉर्मूला अगर कंटिन्यू रहेगा तो पहले $3 से $30 हुई थी, $30 से $30,000 हुई, $300 हुई थी, 300 से 3,000, 3,000 से 30,000, 30,000 से अब 300,000 का नंबर लोगों के दिमाग में है। एंड ये डॉलर की बात कर रहा हूं, तो $300,000 तक टच होनी चाहिए इस साइकिल में। Okay. But let's stick to the demand and supply argument. At the end of the day, you are talking about currency and the money supply here, which is essentially भाई डॉलर की जो सप्लाई है वैसे ही बिटकॉइन की सप्लाई की अगर आप बात करते हो तो डॉलर जो है वो फाइनाइट नहीं है, तो जितनी मर्जी आएगी वो लोग छापते चले जाएंगे। करेक्ट। सो उसकी जो सप्लाई है वो तो बढ़ती ही जा रही है। आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर्स, बट फ्रॉम व्हाट आई नो पोस्ट कोविड देयर हैव बीन मोर डॉलर 25% एक्स्ट्रा प्रिंटेड, जितने कि शायद पिछले 20-25 साल में नहीं बिल्कुल प्रिंट हुए थे। बट उससे अगर आप देखोगे तो इतना ज्यादा सप्लाई आने के बावजूद ऐसा तो है नहीं कि डॉलर का भट्टा एकदम बैठ गया है और कहानी खत्म हो गई है। वही चीज को अगर मैं बिटकॉइन के ऊपर लेके आता हूँ, इनिशियली आई कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा हाँ नंबर्स बहुत ज्यादा थे, बट अभी आप बोल रहे हो कि 93% पे रफली हम लोग अभी बैठे बैठे हैं। अगले 12 साल में मैं 99 पे जाऊंगा, और अगर मैं अगली हार्विंग की बात करूं, आई डोंट नो बट आई एम अज्यूमिंग अगली हार्विंग में मैं 96 पे 95 पे इसके आसपास चला जाऊंगा। करेक्ट करेक्ट। तो मैं इतना ज्यादा तो फर्क नहीं आ रहा है ना भाई, 2% अभी बचा ही 6% है, उसके 2% 3% में क्या ही फर्क पड़ेगा। 9 सो दी सप्लाई ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मार्केट, दैट्स व्हाट, बिकॉज इट्स नॉट अ कंज्यूमेबल। भाई गोल्ड का कम से कम ज्वेलरी वगैरह के अंदर कुछ तो कंजम्पशन होता है, आलू प्याज का जिसका डिमांड सप्लाई शॉक रहता है उसका कंजम्पशन होता है, वो खत्म हो जाता है। बिटकॉइन खत्म तो नहीं हो रहा है ना, तुम्हारे पास जो बिटकॉइन पड़ा है वो तुम्हारे पास पड़ा है, मेरे पास जो बिटकॉइन पड़ा है वो मेरे पास पड़ा है। तो फिर भी इन योर ओपिनियन डू यू थिंक ये हार्विंग का या जस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट हार्विंग, मैं 4 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 12 साल की बात कर रहा हूं कि देखो अडॉप्शन होगा, पॉपुलैरिटी होगी तो भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मतलब दैट इज अ नो ब्रेनर। बट जस्ट बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई थिंग, डू यू थिंक देयर इज एन आर्ग्यूमेंट टू बी मेड देयर कि बिकॉज उसका सप्लाई कम होता जाएगा, दैट scarcity so to say is also going to drive up the price, because the old bitcoin exists, खत्म नहीं हो गया है, वो कोई खा नहीं गया है, तो मार्केट में तो सप्लाई उसकी बढ़ ही रही है, कम तो हो ही नहीं रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सो काफी अच्छा आर्ग्यूमेंट आपने बताया, तो लेट्स लुक एट इट। तो लेट्स से अभी 93% बिटकॉइन ऑलरेडी इन सर्कुलेशन है, बट वो पर्सन जो बिटकॉइन है, वो पर्सन जिसके पास बिटकॉइन है, दे माइट हैव एन एंट्री प्राइस, उन्होंने शायद 20,000 पे खरीदा होगा या 30,000 पे खरीदा होगा। सो दे विल हैव सम, आइदर इफ दे आर एन इन्वेस्टर और अ मैक्सिमलिस्ट, तो वो इन्वेस्टर और मैक्सिमलिस्ट तभी बेचेंगे जब उनको एक लाइफ पर्पस की रिक्वायरमेंट है। सपोज अब उनको घर खरीदना है या उनको कोई बड़ा एक्सपेंस चाहिए, जो उनको बिटकॉइन इज अ टूल और अ व्हीकल, तो अब वो यूज करके अपनी लाइफ के लिए यूज करना चाहते हैं। सो दोज विल बी द रीजन। एंड दोज अगर ट्रेडर में हैं तो वो बोल रहे हैं कि भाई अब मेरे को इनफ प्रॉफिट मिल गया है, मुझे वो बिटकॉइन बेचना है। सो जिसके पास भी बिटकॉइन है उसका एक थ्रेशोल्ड है जिसपे वो बेचने के लिए तैयार है, एंड वो थ्रेशोल्ड जो है फॉर ईच एंट्री पॉइंट बढ़ता जा रहा है। जो अभी बिटकॉइन पे घुसेगा, वो अगर $60,000 पे घुसा है तो उसका थ्रेशोल्ड इज डिफरेंट, एंड जो पहले घुसा है उसका थ्रेशोल्ड इज डिफरेंट। सो इट इज नॉट दैट वो बिटकॉइन जो शुरू में किसी ने $500 पे खरीदा है या $5,000 पे खरीदा है, वो ऑलरेडी हैज चेंज्ड हैंड्स एंड इट इज नाउ विद अ पर्सन हु माइट हैव बॉट इट एट 20,000 या 30,000। तो उसका एक थ्रेशोल्ड है जिसपे वो एग्जिट करने को तैयार है, एंड तब तक
वो सप्लाई इज वॉट एवर इज द सप्लाई. सो जो जो प्राइस डिटरमिन है वो प्राइस के हिसाब से देयर इज एन एग्जिस्टिंग होल्डर हु इज विलिंग टू सेल, एंड देयर इज सप्लाई के कंपोनेंट दो हैं. एक सप्लाई का कंपोनेंट है जो एग्जिस्टिंग सेलर है वो बेचने को तैयार है, और एक है नया सप्लाई जो आ रहा है. तो एग्जिस्टिंग सेलर में कोई चेंज नहीं हुआ, वो प्राइस से डिटरमिन हो रहा है. जो नया आ रहा है, नया कंपोनेंट की सप्लाई कम हो गई. So that is why the supply argument is there. And then, as you rightly mentioned, demand argument. So both part of the equation is there. As this goes, क्या होता है कि जब प्राइस मोमेंटम आता है तो डिमांड उसकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि जब पैसा लोग देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है, ये तो पिछले बार देखा था तो मैंने 10 लाख रुपए का बिटकॉइन था, अभी 50 लाख का हो गया है, क्या हो रहा है. तो मैं समझूं, जो स्केप्टिक होते हैं वो भी बोलते हैं अच्छा ट्रेडर तो बन ही जाता हूं, मेरे को नहीं समझना है 10 साल में क्या होगा वो नहीं समझ में आता है, बट 1 साल में तो इसका कुछ मुनाफा ले ही लेता हूं. तो उस तरह से डिमांड डिटरमिन होती है. तो ये कॉम्बिनेशन जो है उसका फर्क पड़ जाता है, उसकी वजह से प्राइस मूवमेंटम और मूवमेंट, पॉजिटिव प्राइस मूवमेंट हमेशा बिटकॉइन हार्विंग के आसपास आता है. भाई यार, मतलब एज अ स्केप्टिक मेरा जो सप्लाई का तो नहीं है, मेरा तो मेन जो डाउट है वो डिमांड और अडॉप्शन और सरकारों का ही है. बट अब वो तो सिर्फ वक्त ही बताएगा कि क्या एक्चुअली होने वाला है. बट मेरे कुछ कुछ और भी डाउट्स या डर वगैरह रहते हैं बेस्ड अपॉन व्हाट आई हैव सीन एंड रेड एंड आई हैव सीन विद पीपल हैपन. यार मैंने मान लो कहीं से खरीदा किसी भी प्लेटफॉर्म ही गायब हो गया भाई साहब. उनके यहाँ कोई हैक हो गया या रेड हो गई या आदमी गायब हो गया, आदमी भाग गया, मैं पैसा उससे जो है वो निकाल नहीं पा रहा हूँ. सो थैंकफुली आई हैवंट फेस दैट, बट आई नो मल्टीपल पीपल पर्सनली जिन्होंने कि पैसा कहीं पे लगाया रखा था, या तो उनकी गलती की वजह से या प्लेटफॉर्म की गलती की वजह से उनका बिटकॉइन डूब गया या क्रिप्टो डूब गया. एंड बैंक के अंदर ऐसा मैंने बहुत कम केसेस सुने हैं कि भैया बैंक में मेरा पैसा पड़ा था, बैंक ही डूब गया और मेरे पैसे डूब. होता है बट बहुत कम होता है. सो व्हाई डज दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट विद एक्सचेंजेस, एंड इज देयर समथिंग दैट कैन बी डन टू अवॉइड गेटिंग इनटू दीज प्रॉब्लम्स, सो टू से? बिल्कुल. सो एक न्यूआंस मैं करूंगा, जब आप पैसे की बात करते हैं इन अ बैंक, जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो जनरली दो अलग चीजें होती हैं. पैसा इन द बैंक, एज यू राइटली मेंशन, जनरली जो होता है बैंक में पैसा, बिकॉज आरबीआई इंश्योर्ड रहता है, वो प्रोटेक्टेड. तो बहुत ही हिंदुस्तान में तो जब से इंडिपेंडेंस हुआ है कभी किसी भी बैंक का पैसा डूबा नहीं है. बट आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, चाहे वो आपने स्टॉक्स में लगाए, चाहे रियल एस्टेट में लगाए, चाहे आपने कहीं लगाए, तो उसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है. तो आपका स्टॉक नीचे भी जा सकता है, आपका रियल एस्टेट का वो घर शायद डिलीवरी नहीं हो या उसकी प्राइस उतना ना बढ़े. तो आई वुड रेकमेंड दैट आप इसको इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में मान के चलें. तो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में मान के चलें. तो अब इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में जब मान के चलते हैं, तो कोई इन्वेस्टमेंट जब होता है तो एक काउंटर पार्टी होता है जो उस काउंटर पार्टी का इन्वेस्टमेंट आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहा है. एंड हिस्टोरिकली क्या है, जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो डिजिटल गोल्ड की बात करें, चाहे रियल एस्टेट की बात करें, चाहे बॉन्ड्स के स्टॉक की बात करें, तो आपके पास कागज या डिजिटल कागज है कि ये आपके आईसीआईसीआई डायरेक्ट में या कहीं आपके स्टॉक रखे हुए हैं या फिर कहीं आपके रजिस्ट्री के पेपर रखे हुए हैं. अब वो काउंटर पार्टी रिस्क है आपके पास, कि वो जो काउंटर पार्टी है, एक्सचेंज की बात करें अगर डिजिटल, तो अगर आपने बस डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं, डिजिटल ई गोल्ड की बहुत चलन चली पड़ी है. तो ई गोल्ड है, जो ई गोल्ड जिससे आपने सर्टिफिकेट लिया है उसका सर्टिफिकेट है आपके पास. अगर वो कंपनी बंद हो जाती है या डूब जाती है, तो फिर जो भी लीगल प्रोसेस है उसके हिसाब से जो लिक्विडेशन है उसमें से आपको जो मिलेगा वो मिलेगा. अब जैसे ई गोल्ड में आप गोल्ड अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, आपके घर में एक लॉकर रख लें, उसमें गोल्ड रख लें, तो आपका गोल्ड आपके पास है. काउंटर पार्टी रिस्क आपने हटा दिया. तो अब वो कंपनी चाहे कहीं भी जाए,
लेकिन आपको आपकी तिजोरी में जो गोल्ड रखा है वो उसकी आपको वो तो मेरा प्रोटेक्शन करनी हाँ, प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। क्यों? तो देन यू चेंज द रिस्क फ्रॉम अ काउंटर पार्टी रिस्क टू योर ओन एबिलिटी टू प्रोटेक्ट दैट। तो बिटकॉइन में भी सेम है। आप ये मान के चलें कि अगर आप काउंटर पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, एंड वी डोंट रेकमेंड दैट यू शुड टेक अ काउंटर पार्टी रिस्क, तो बिटकॉइन एंड बिटकॉइन सिर्फ में यू शुड टेक सेल्फ कस्टडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप समझें कि क्या होता है सेल्फ कस्टडी। बट अगर सिंपल गोल्ड का एनालॉजी लें तो आपने गोल्ड जो है बैंक में रखा हुआ है और बैंक ने आपको सर्टिफिकेट दिया है कि ये बैंक का गोल्ड ई गोल्ड है। तो अगर ई गोल्ड इशुइंग कंपनी अगर खत्म हो जाती है तो गोल्ड तो उसके पास था, वो कंपनी चली गई, तो जो भी लीगल प्रोसेस होगा उससे रिकवरी होगी। सिमिलरली इन बिटकॉइन आपने किसी एक्सचेंज से खरीदा और आपने एक्सचेंज पे ही छोड़ दिया, तो एक्सचेंज अगर डूब जाता है, जो बहुत कॉमनली हुआ है इस स्पेस में, इसीलिए जो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है वो वाली बात होती है। तो इस इंडस्ट्री में अब ऑलमोस्ट ये हो गया है कहना कि नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन। तो मने आपके पास अगर आपकी कीज नहीं है तो आपके कॉइन ही नहीं है। आप ये मान के चलें कि आपका बिटकॉइन ही नहीं है वो। तो आपको सेल्फ कस्टडी के बारे में जानना है और उसको सीखना है। शुरू में थोड़ा बहुत बड़ी चीज लगती है, बट एकदम सिंपल सी चीज है। जैसे आपकी तिजोरी में आप सोना रख सकते हैं, वो सोना आपका है और आपके पास तिजोरी की चाबी है या तिजोरी की कीज है, वैसे ही बिटकॉइन जो होते हैं वो एक ब्लॉकचेन लेजर में होते हैं। उसमें एक पब्लिक की और प्राइवेट की होती है। वो प्राइवेट की आपके पास होनी चाहिए। एज लॉन्ग एज यू हैव द प्राइवेट की, देन यू हैव द बिटकॉइन एंड यू। एक्सचेंज से आपने खरीदा और अब आपकी, तो आपने किसी ज्वेलर से सोना खरीदा, अब आपके पास आ गया। अब आपके पास आ गया, आपने अपनी तिजोरी में रख लिया। या फिर आपने सोना खरीदा और आपने उसी को छोड़ दिया, उसने आपको एक रसीद दे दी और आपने रसीद रखी हुई है कि जब मुझे जरूरत होगा मैं रसीद लेके आपके पास जाऊंगा, आप मुझे सोना दे दोगे। तो आप विश्वास कर रहे हो उस ज्वेलर पे। तो सेम चीज है इन दिस की एक्सचेंज और आप सोने की अगर एनालॉजी लें तो आपने ज्वेलर से सोना खरीदा, ज्वेलर के पास ही छोड़ दिया, उसने रसीद दे दी कि आपके पैसे तो ले लिए, आपका सोना मेरे पास रखा हुआ, जब आपको चाहिए होगा आप आए और ले लें। एंड एक्सचेंज इक्वलेंट ऑन बिटकॉइन, क्या आपने बिटकॉइन खरीदा और एक्सचेंज पे ही छोड़ दिया। तो अगर एक्सचेंज, बिकॉज ये नई इंडस्ट्री है, यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, सो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि सेल्फ कस्टडी के बारे में सीखें। और बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट इसको ऐसा ना बनाएं। कुछ लोग ऐसा है कि बोलते हैं अच्छा जब तक मुझे सेल्फ कस्टडी नहीं समझ में आती मैं खरीदूंगा ही नहीं। तो वो एक मेरे हिसाब से एक एरर है। आप पहले शुरुआत करें, आप एक्सचेंज के पास रखें, एक थ्रेशोल्ड रखें अपने दिमाग में, एंड वो थ्रेशोल्ड हर आदमी के लिए अलग होता है। तो एक ह्यूरिस्टिक थ्रेशोल्ड ये है कि अगर वो पैसा आपका डूब जाए तो आपके आंसू निकलेंगे तो आपके सेल्फ कस्टडी होने चाहिए। अगर आपके आंसू नहीं निकलेंगे, दुख तो होगा 10 रुपए भी खो जाए तो, लेकिन अगर आंसू निकलेंगे तो आपको सेल्फ कस्टडी, और खून के आंसू निकलेंगे तब तो पक्का सेल्फ कस्टडी करनी चाहिए आप। आई फुल्ली अग्री विद दैट। मैंने अपना अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैंने मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो एक BitDNS करके प्लेटफॉर्म था, उससे खरीदा और फिर उसके बाद में मैंने यही सेल्फ कस्टडी करने की कोशिश की। मेरे को ऑनेस्टली समझ में आया नहीं। एक मेरे दोस्त को समझ में आता था तो उसको बोला कि भैया ये सब काम करके दे दे, क्योंकि मेरा क्रिप्टो पोर्टफोलियो जो था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो 10 लाख के आसपास क्रॉस कर गया था। और जहां वो 10 लाख का नंबर हुआ तो मेरे को लगा इसके नीचे जो था तब तक खो जाएगा ठीक है, 10 लाख के बाद में तो फिर मेरे आंसू निकल जाएंगे। तो वो मेरा वो 10 लाख का कट ऑफ था जिसके बाद में मैंने किया। तो अब मान लो, सो दिस वाज अनदर प्लेटफॉर्म। आपके प्लेटफॉर्म पे मैंने जाके मैंने getbit.in के ऊपर गया और मैंने 5,000 रुपए का सपोज मैंने बिटकॉइन खरीद लिया और वो पड़ा हुआ है। वो 5,000 का 20,000 हुआ, 50,000 हुआ 3 साल में, 4 साल में, और उसके बाद में तुम भाग गए। वेबसाइट में टाइप कर रहा हूं, ऑन ही नहीं हो रही है। तो मैं सेल्फ कस्टडी, फिर मैं ये जो बीच में मेरा वो कट ऑफ हो गया, तो मैं सेल्फ कस्टडी में गेटबिट, जो अगर मान लो तुम दुकानदार हो, ज्वेलर हो, तो मैं तुम्हारे यहां से भी सेल्फ कस्टडी ले सकता हूं। इज दैट अलाउड ऑन योर एक्सचेंज और हाउ डज इट वर्क? करेक्ट। सो बहुत ही अच्छा सवाल है।
आप जिस भी एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं, आप चेक करें कि वो सेल्फ कस्टडी अलाउ करता है कि नहीं। अगर वो अच्छा। सेल्फ कस्टडी अलाउ ही नहीं करता तो आप ले ही नहीं सकते। तो आपको केयरफुल रहना चाहिए कि ऑलवेज यू वेन एवर यू आर यूजिंग दैट एक्सचेंज यू विल हैव दैट काउंटर पार्टी रिस्क, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको रसीद ही मिलने वाली है। आप अपना सोना अपने घर ले जा नहीं सकते हैं, वो ऑप्शन ही नहीं है वहां पे। हमारा एज गेटबिट वी फुली बिलीव वी आर अ बिटकॉइन ओनली एक्सचेंज, वी आर बिटकॉइन ओनली कंपनी। वी बिलीव कि नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स। हम इसके बारे में मैं खुद बिलीव करता हूं और हम अपने कस्टमर को भी यही सिखाते हैं। तो आप अगर बिटकॉइन गेटबिट पे खरीदते हैं, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं गेटबिट पे, बट यू शुड बी अवेयर कि गेटबिट इज ऑल्सो अ कंपनी एंड आप काउंटर पार्टी रिस्क इनहेरेंटली ले रहे हैं जब आप गेटबिट पे छोड़ रहे हैं। हम एनकरेज करते हैं आपको कि आप सेल्फ कस्टडी लें। सेल्फ कस्टडी का बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप सीखें उसको, अपना एड्रेस बताएं कि कहाँ है आपका सेल्फ कस्टडी वॉलेट, और हम उसमें इमीडिएटली आपको बिटकॉइन आपका ट्रांसफर कर देंगे। और आप बिटकॉइन ट्रांसफर हो जाएगा तो आप सेल्फ कस्टडी में जाके अपना देख सकते हैं बिटकॉइन। तो एक बार आपने सेल्फ कस्टडी ले लिया, देन गेटबिट, चाहे कुछ भी होता है, गेटबिट एज अ कंपनी को, आपका बिटकॉइन आपके पास है, आप कहीं और ले जाके बेच सकते हैं उसको और आपको आपका पैसा मिल सकता है। अगर आपने सेल्फ कस्टडी नहीं लिया है और आपने गेटबिट पे छोड़ा है और खुदा ना खास्ता गेटबिट एक्सचेंज के साथ कुछ होता है और आपको वेबसाइट नहीं मिल रही, तो हम FIU रजिस्टर्ड जो यहाँ इंडिया का लीगल प्रोसेस है, हम वहाँ के लाइसेंस्ड एंटिटी हैं, उनके ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर हैं। तो जो उनका प्रोसेस होगा उसके हिसाब से जो लीगल व्हीकल है वो लीगल प्रोसेस विल टेक केयर, एंड जो लोगों का बिटकॉइन जो उन्होंने छोड़ा है हमारे पास, उनका एसेट विल बी रिटर्न एज पर दैट लीगल प्रोसेस। वैसे ही सेल्फ कस्टडी एक सिंपल एड्रेस है, आप एड्रेस बनाएं और उसका वो एड्रेस जो है वो पब्लिक की है और उसकी एक प्राइवेट की होती है, एक तरह से मान ले पासवर्ड। वो पब्लिक की जो है आप किसी को भी दे दें, वहां पे आपके बिटकॉइन आ जाएंगे, जो भी आपको भेजेगा उस पे। और प्राइवेट की है, जब आपको वो बिटकॉइन मूव करने हैं तो उसको यूज करना पड़ेगा साइन करने के लिए ट्रांजैक्शन। सो वो सेल्फ कस्टडी का प्रोसेस है। सो ये सेल्फ कस्टडी का बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसमें क्या है कि एज यू गेट अवेयर ऑफ इट, ये सेल्फ कस्टडी करने के बाद वो साइनिंग के लिए आप हार्डवेयर डिवाइस भी ले सकते हैं, आप मल्टीसिग भी कर सकते हैं। मल्टीसिग का मतलब है क्या कि आप और आपकी वाइफ या आप और आपके फादर मदर जो भी हैं, 2 लोगों को साइन करना पड़ेगा, तभी वो बिटकॉइन मूव हो सकता है। 2 of 3 भी बोल सकते हैं कि आपके पास भी है, आपकी वाइफ के पास भी है और एक लॉकर में पड़ा हुआ है, तो 2 जनों की सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। तो एज यू स्टार्ट योर जर्नी अराउंड दिस, ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम का प्रोसेस है। आप इस पे जर्नी पे अपने स्टार्ट करें एनी अमाउंट से, एंड एज यू इंक्रीज योर एज योर नेटवर्थ ऑन बिटकॉइन विल इंक्रीज, ये ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज आपको पता चलने लग जाएंगे। आप इसके बारे में पता करें। तो एक तो यार ये वाला डर है कि भाई मतलब जहां से मैंने खरीदा वो एक्सचेंज ही गायब हो गया तो क्या करूंगा। दूसरा थोड़ा सा इसका जो लीगल स्टेटस है, आई एम अवेयर क्योंकि मेरे पास में बिटकॉइन है, मैं इस बारे में पढ़ा भी हूं, बट आज की डेट में जब मैं अपने उन दोस्तों से बात करता हूं जिनका कि बिटकॉइन में एक्सपोजर नहीं है, तो एक लीगल डर रहता है यार, इसके ऊपर तो पता नहीं टैक्सेस का क्या होगा, ये तो इलीगल चीज है, इसके लिए मेरे को उठा के जेल में तो नहीं डाल देंगे। और जेल में डालना बहुत दूसरी बात है, IT का नोटिस ही आ जाएगा, मेरी तो हालत उसी में ही खराब हो जाएगी। तो मतलब व्हाट्स द लीगल स्टेटस अराउंड बिटकॉइन स्पेशली इन इंडिया। तुम सियाटल में बैठे हो भाई, अलग कहानी चलती है। भारत देश की क्या कहानी है लीगल स्टेटस? सो भारत देश वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जहां पे इसकी लीगल स्टेटस की क्लैरिटी बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो हाईएस्ट लीगल बॉडी है, उन्होंने 4 मार्च 2020 कोविड के जस्ट अबाउट पहले एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था, जहां पे उन्होंने ये बताया था कि cryptocurrency is like a fundamental right of customers. They can choose to buy whatever asset they want to buy, and this is an asset, and if it's an asset, then they are free to buy
there is no stoppage or no restriction for them to buy. तो आप प्लीज गूगल करें 4 मार्च 2020 को, ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट था, एंड दिस वाज, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज। इसके जस्ट पहले जो है ना, वो एक आरबीआई ने सर्कुलर लिखा था कि आप कोई भी बैंक से पैसा लेके क्रिप्टो करेंसी नहीं खरीद सकते हैं, नहीं, अगर आप खरीदेंगे तो वो इलीगल है, एंड दैट ओवरहैंग हैज रिमेन्ड। बट पोस्ट दैट लैंडमार्क जजमेंट, all digital assets, premier of them Bitcoin is fully legal in India। आप बिल्कुल आराम से डंके की चोट पे जाके बिटकॉइन खरीद सकते हैं। जैसे आप सोना खरीदते हैं या जैसे आप कोई और एसेट खरीदते हैं, वैसे आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। इसमें कोई इलीगल नहीं है, 100% लीगल है। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज 4 मार्च 2020 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ें, क्लियरली लिखा है उसमें। एंड उसी के बाद आरबीआई ने सारे बैंकों को फिर नोटिस जारी किया कि अगर आपके कस्टमर पैसे यूज करके बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, एंड आप जाके बिटकॉइन खरीद सकते हैं। ओवर एंड अबव अब क्या हुआ है कि ऑल कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग इन दिस हैव टू रजिस्टर विद एफआईयू। सो एक तरह से फुल्ली लाइसेंसिंग प्रोसेस नहीं है, बट एक सेमी लाइसेंसिंग, तो एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है। सो सारे बैंक्स आर आल्सो सपोज टू रजिस्टर विद एफआईयू, ऑल एनबीएफसीज, ऑल पेमेंट कंपनीज आर रजिस्टर्ड विद एफआईयू। सो वो मनी लॉन्ड्रिंग और वो सब चेक्स के बारे में ज्यादा ध्यान रखते हैं, बट इफेक्टिवली इट इज कम अंडर रेगुलेशन। तो ये 2022 में हुआ था। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, तब कोई भी क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन बेच सकता था। बट पोस्ट 2022 एक्चुअली 2023 में एफआईयू रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हुआ, और 2023 के बाद जो भी कंपनी बिटकॉइन में डील कर रही है उनको एफआईयू के साथ रजिस्टर करना पड़ता है। तो एक क्लियर प्रोसेस बन चुका है, एंड एस्टैब्लिश्ड चेक्स एंड बैलेंसेस आर इन प्लेस। तो जो रिस्क 2019 में था, जब आरबीआई बोल रहा था कि ये इलीगल है, वो रिस्क से कंपेयर टू नाउ 4 साल में स्पेक्ट्रम हैज कंप्लीटली चेंज्ड। इट इज फुल्ली लीगल, इट इज रेगुलेटेड, एंड देयर आर मेनी चेक्स एंड बैलेंसेस इन प्लेस। सो आप बिल्कुल एज इंडियन सिटीजन आप अपना पैसा अगर आप चूज करते हैं तो आप लीगली यूज करें और चूज करें। अब जहां तक टैक्सेशन की बात है, इसमें क्या है कि खरीदने में कोई टैक्सेशन नहीं है। ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि खरीदने में कोई टैक्स है क्या। खरीदने में कोई टैक्सेशन नहीं है। जब भी आप बेचेंगे, लाइक एनी अदर एसेट, आपको जब गेन होता है तो आपको इस पे टैक्स भरना पड़ता है। द डिफरेंस इन बिटकॉइन इज क्लासिफाइड अंडर अ वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो अगर कहीं और आपको लॉस हुआ है और कहीं गेन हुआ है तो सेट ऑफ अलाउड होता है इन नॉर्मल सिनेरियो। अगर बिटकॉइन में आपको गेन हुआ है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, अगर लॉस हुआ है तो आपको सेट ऑफ अलाउड नहीं है। ये डिफरेंस और न्यूआंस है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने 1000 रुपए का बिटकॉइन खरीदा और लेट्स से वो 2000 का हो गया, तो 1000 रुपए की आपकी कमाई हुई, तो 1000 रुपए पे अगर आप 30% के ब्रैकेट में हैं तो 300 रुपए आपको टैक्स भरना पड़ेगा, विच इज नॉर्मल, विच सभी जगह होता है, आपको भरना पड़ेगा। अब द डिफरेंस इज कि अगर आपने 1000 रुपए का खरीदा और वो 900 रुपए का हो गया और आपने 900 का बेचा, तो 100 रुपए का जो आपका नुकसान हुआ, अदर एसेट्स में कहीं ये सेट ऑफ अलाउड होता है कि आपने यहाँ 100 रुपए का नुकसान हुआ, कहीं और 100 का प्रॉफिट हुआ, तो आपने नेट टैक्स कहीं नहीं भरा, क्योंकि एक जगह नुकसान हुआ, एक जगह प्रॉफिट हुआ। ये टैक्स का खाली डिफरेंस है कि आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट, एंड बिटकॉइन इज अ वर्चुअल डिजिटल एसेट, अगर आपको लॉस होता है, आप लॉस बेचते हैं, पहले तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप 4 साल का टाइम फ्रेम लेके चलें। अगर 4 साल का टाइम फ्रेम लेके चलेंगे तो आपको लॉस होएगा ही नहीं। लेकिन फ्रॉम अ न्यूआंस एंड टेक्निकल पर्सपेक्टिव आपको लॉस सेट ऑफ अलाउड नहीं है। एंड जब आप बेचेंगे तो जो जिस भी एक्सचेंज में बेचेंगे, एज पर करंट टैक्स लॉज 1% आपका टीडीएस कट करके जमा कर दिया जाएगा
ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू। सो जो एग्जांपल दिया हमने, अगर आपने 2,000 रुपए का बिटकॉइन बेचा, तो आप गेटबिट पे भी बेचेंगे अगर, तो 2,000 का 1% 20 रुपए जो है आपके पैन कार्ड पे टैक्स जमा करके हम सरकार को दे देंगे कि अभय ने या रवि ने ये बिटकॉइन बेचा है और ये 2,000 रुपए का बेचा है। एंड व्हाट यू आर, आप अपने जब टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आप अपने सीए को बताएं कि आपकी खरीदने की प्राइस थी 1,000 रुपए, आपने 2,000 पे बेचा है, और इस पे 30% आपका जो भी टैक्स ब्रैकेट है, एक्चुअली वर्चुअल डिजिटल एसेट टैक्स ब्रैकेट पे डिपेंड नहीं करता है, आपको 30% इस पे टैक्स भरना पड़ेगा। तो आपको गेन पे 30% टैक्स भरना पड़ेगा। तो वो टैक्सेशन का नियम है। तो मेरा एक फॉलो अप था विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन, डाउट है मेरा। मान लीजिए मैं आपको दो सिनेरियोस देता हूँ कि मैंने 1,000 रुपए का मैंने बिटकॉइन खरीदा, मैंने उसको 900 रुपए में बेचा, फिर 6 महीने बाद मैंने वापस 1,000 रुपए का बिटकॉइन खरीदा और मैंने उसको 1,500 रुपए में बेचा। इट इज द सेम एसेट दैट आई हैव डन इट इन। तो अगर साल भर में देखोगे तो मैंने साल भर में 2,000 का बिटकॉइन खरीदा और 900 प्लस 1,500 2,400 का बेचा, तो मैं 400 रुपए के ऊपर टैक्स दूंगा। या कि नहीं, हर ट्रेड के अंदर मेरा 1,000 का 1,500 हुआ है तो मैं 500 पे टैक्स दूंगा और वो जो मेरा 100 गया वो मेरा गया। सो विच मॉडल इज वैलिड? मैं साल भर के सारे बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस देखूंगा कि मैं हर एक ट्रेड में क्या फायदा और क्या नुकसान हो रहा है, ऑन एवरी ट्रेड आई हैव टू पे टैक्सेस। सो इस जो एग्जांपल तुमने दिया रवि, उसमें सेकंड इज एप्लीकेबल एज ऑफ नाउ। द वे द रूल हैज बीन रिटन कि लॉस हुआ तो आपका, आप टैक्स नहीं भरोगे, बट आपको उस पे, आपका मतलब था आपने लॉस हुआ, आपको उस पे टैक्स नहीं होगा, बट कोई जहां पे भी प्रॉफिट हुआ, जब भी प्रॉफिट हुआ, उस पे आपको 30% टैक्स भरना पड़ेगा। अच्छा, इवन इन द सेम एसेट, ऐसा नहीं है कि अच्छा हाँ मान लो मैंने सेम एसेट, सेम डे, सेम ईयर, कुछ वो नहीं है, जो भी प्रॉफिट है उस पे आप टैक्स भरें, जो लॉस है वो आपका है, सेट ऑफ अलाउड नहीं। सेट ऑफ अलाउड। यार ये तो थोड़ा सा दिक्कतदायी बात है, बट let's see, eventually I'm sure these will evolve, which brings me to the next question, that there are various digital assets that exist on your platform. Can I buy anything other? इसका तो नाम ही GetBit है, तो आप बिटकॉइन के अलावा और कुछ बेचते हो या बेचते ही नहीं हो? हम बेचते ही नहीं है, तो हमारी दुकान में सिर्फ गोल्ड और प्योर गोल्ड मिलता है, और वो प्योर गोल्ड है बिटकॉइन। और कोई और मेटल या कोई और डिजिटल एसेट या क्रिप्टो करेंसी हम नहीं बेचते हैं, क्योंकि वी डोंट थिंक दैट वी अंडरस्टैंड what is the benefit in the long run for any of these digital asset। जो हमें समझ में आता है वो ये है कि बिटकॉइन इज द इक्विवेलेंट ऑफ डिजिटल गोल्ड। एंड जब हम गोल्ड की बात करते हैं तो एक ही गोल्ड होता है, वो 24 कैरेट का गोल्ड जो है वो बिटकॉइन है। और वो बिटकॉइन लें, आप रखें, क्योंकि हमको कोई और चीज एज एन एसेट क्लास नहीं समझ में आती। एज ए टेक्नोलॉजी कोई यूज केसेस होंगे उसके, एंड वो टेक्नोलॉजी यूज केस, अगर आप एक टेक स्टॉक में जैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो टेक स्टॉक वाला आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप प्लीज उसको समझें और उसकी टेक्नोलॉजी यूज केस समझें और उसको यूज करें। बट एज अ मॉनेटरी एसेट एंड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, देयर इज ओनली बिटकॉइन, एंड दैट इज व्हाई वी आर अ बिटकॉइन ओनली कंपनी। आप खाली बिटकॉइन खरीद सकते हैं, हम खाली बिटकॉइन में डील करते हैं। तो अबे नाउ कमिंग टू द आइडिया, तो ये तुम्हारी कंपनी अगर सिर्फ बिटकॉइन पे ही फोकस्ड रहेगी, डोंट यू थिंक दैट, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन और क्रिप्टो और एनीथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ टू यू एज अ फाउंडर ऑफ अ कंपनी, डोंट यू थिंक कि लिमिटिंग योरसेल्फ टू जस्ट वन थिंग, नाउ वेदर इट्स बिटकॉइन और समथिंग एल्स, कि अभी आप लोग सिर्फ बिटकॉइन बेच रहे हो या बिटकॉइन आप खरीदते भी हो? मतलब मेरे पास में बिटकॉइन पड़ा है सेल्फ कस्टडी का, मैं आके आपके प्लेटफॉर्म पे बेच सकता हूँ? हाँ, तो आप ला सकते हो। हमने अभी को इन द सो वो प्रोडक्ट लाइव नहीं किया है हमने अभी, बट अगर आपके पास सेल्फ कस्टडी का बिटकॉइन है, आप लाना चाहते हो और बेचना चाहते हो, तो वी विल वर्क विथ यू। इनिशियली प्रोडक्ट जो अभी लाइव है वो है कि आप पैसा लाएं और खरीदें और अपनी सेल्फ कस्टडी पे ले जाएं, और आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे खरीदा है और सेल्फ कस्टडी पे ले गए हैं, तो आप लेके आए और बेच भी सकते हैं।
बट इफ यू आर आर कस्टमर, अगर आपने कहीं और खरीदा है तो हमको थोड़ा चेक्स करना पड़ता है टू इंश्योर दैट ये करेक्ट, इट मीट्स ऑल द रिक्वायरमेंट फ्रॉम अ FIU परस्पेक्टिव, क्योंकि हम रजिस्टर्ड हैं, लाइसेंस्ड है वहां पे। एंड एज लॉन्ग एज दोज चेक्स आर मेट, आप बेच सकते हैं और अपना पैसा अपने खाते में ले जा सकते हैं। तो आप दोनों काम कर सकते हैं एट आवर प्लेटफॉर्म। एंड यू डोंट सी कि ये तो हम लोग अभी 2024 अप्रैल में बात कर रहे हैं, 2025 के अंदर कि हाँ भैया आपको इथीरियम लेना है, इथीरियम लो, डोज लेना है, डोज लो, दैट यू डोंट सी हैपनिंग इन द नेक्स्ट 1 year or so on GetBit.in. In the lifetime of GetBit, we will be a Bitcoin only company. अच्छा मतलब Either we will exist as GetBit of Bitcoin, हमारे नाम में ही बिट है, और हम we were born, and हमारी thesis ये है कि Bitcoin is the apex digital asset, which is the only digital asset which is valuable for humanity, and which is what everyone should learn about and seek to understand. हमारा थीसिस फ्रॉम अ कंपनी पर्सपेक्टिव, लेट्स से आप रवि हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आप बोलो कि भाई तुम तो बिटकॉइन खाली बेचते हो, तुम्हारे जो दूसरे हैं वो तो 5 और सामान बेचते हैं। Exactly. और तो उसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा, तुम्हारे पास इन्वेस्ट करूंगा, तुम्हारी तो अपॉर्चुनिटी साइज कम है। हमारा थीसिस इसमें क्या है रवि, कि जो पूरी इंडस्ट्री है फाइनेंशियल इंडस्ट्री, सो व्हाट इंटरनेट डिड टू इंफॉर्मेशन, बिटकॉइन इज डूइंग टू मनी, and it is Bitcoin only which is doing to money. There are technology elements of other cryptocurrencies which will be NFT कर सकते हो और कुछ और हो सकता है, but from a core, whatever is the financial institutions which are built on a framework, that framework will get upgraded to a Bitcoin standard. That is the thesis. तो आज की तारीख में जो है सबसे आसान काम है बिटकॉइन खरीदना, move it to self custody. As this industry grows, हम प्रोडक्ट्स जो देख रहे हैं वो बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। इसमें प्रोडक्ट्स ये सिंपल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपने बिटकॉइन खरीदा, उसके बाद सेल्फ कस्टडी में ले गए, सेल्फ कस्टडी के बाद एक नॉर्मल सक्सेशन इनहेरिटेंस प्लानिंग होती है कि आप चाहते हैं कि ये बिटकॉइन, थिंक ऑफ इट लाइक, ये अगर आपको जयपुर में घर खरीदना है तो आप सबसे इंपॉर्टेंट घर कहाँ खरीदेंगे? सी स्कीम में शायद खरीदेंगे, अगर आपके पास इनफ पैसा होगा। और अगर इनफ पैसा सबके पास होगा जयपुर में, तो सारे लोग सी स्कीम में खरीदना घर चाहेंगे। तो अगर आप डिजिटल अगर स्पेस में पहुंच जाते हैं, एंड दिस इज, if you think of Bitcoin as cyber property or apex property or digital property, then this is available कि C स्कीम में ही सब कोई खरीद सकते हैं। आप 100-200 रुपए का भी खरीद सकते हो, मैं 500 रुपए का भी खरीद सकता हूँ, 5 करोड़ का भी खरीद सकता हूँ। तो अगर मैं भी सी स्कीम में खरीद सकता हूँ, आप भी सी स्कीम में खरीद सकते हो, तो मैं सोडाला कोई जाएगा क्या, या फिर कोई माने कोई और लोकेलिटी में क्यों जाएगा, क्योंकि सब कोई सी स्कीम में खरीद सकते हैं। Fair. So that is my analogy on this. Fair. So देखते हैं वो तो अब बिटकॉइन का क्या कहानी रहती है, बट लेट्स से मैं मानता हूं कि अच्छा हाँ जी 40 घंटे देने चाहिए। देख 40 तो भाई मैं तुमको कमिट कर नहीं पाऊंगा, मैं तुमको 10 घंटे कमिट करता हूं कि मेरे को अगले 1 महीने में 10 घंटे मेरे को स्पेंड करने हैं टू अंडरस्टैंड एंड मूव ऑन दी जर्नी, जो भी अपना डिनायर से स्केप्टिक है या स्केप्टिक से इन्वेस्टर की जर्नी पे अगर मेरे को जाना है, मैं वो 10 घंटे कहाँ लगाऊं? कोई किताब, कोई यूट्यूब चैनल, कोई ट्विटर अकाउंट? क्या रिकमेंड करोगे कि हांडा तेरे को 10 घंटे देने, यहां से चालू कर, दिस इज हाउ यू स्पेंड दोस 10 आवर्स? तो मैं 2 या 3 किताब रेकमेंड करूंगा। एक तो है, सिंपल किताब है, बिटकॉइन स्टैंडर्ड्स, सैफुद्दीन अमूस ने ये किताब लिखी थी। उसमें ये एक्सप्लेन करते हैं कि पैसा क्या होता है, व्हाट इज मनी, हाउ वाज इट फॉर्म्ड। एंड आफ्टर रीडिंग दैट, मैं 12 साल मैंने सिटी बैंक में नौकरी करी और मुझे लगता था कि मुझे पैसा समझ में आता है 12 साल नौकरी करने के बाद। बट वो किताब पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे पैसे के फंडामेंटल्स नहीं सिखाए गए और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो दैट इज वन बुक दैट आई वुड रेकमेंड। एंड एक दूसरी सेकंड बुक दैट आई वुड रेकमेंड इज ब्रोकन मनी। एक लिन एल्डन की किताब है ब्रोकन मनी। बट आप ये देखोगे कि मेरे जो रिकमेंडेशन है ना, वो एज अ बैंकर एंड एज अ फाइनेंस गाय एंड एज अ इन्वेस्टमेंट वाला रुझाव है। बट
इस स्पेक्ट्रम, अगर आपका रुझाव कुछ और है तो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम अवेलेबल है। सो ये दो किताब तो मिनिमम बताऊंगा। एक तीसरी किताब और है, बुलिश केस फॉर बिटकॉइन। एक इंडियन ऑथर हैं जो सियाटल में ही रहते हैं, विजय बोयापति। इन्होंने एक मीडियम में आर्टिकल लिखा था, उसके बाद उन्होंने ये किताब लिखी, बुलिश केस फॉर बिटकॉइन। वो किताब मैं रेकमेंड करूंगा। आप ये तीनों किताब में से कोई भी एक किताब उठा लें, और ये तीन में से जो भी किताब आप उठाएं उसको पढ़ लें। अगर आपको ये तीनों किताब नहीं भी समझ में आती, तो इन तीनों किताब के ऑथर जो हैं उनकी वेबसाइट से हैं, उनके आर्टिकल पढ़ लें। आपको इन वेबसाइट्स में जाके आर्टिकल पढ़ने के कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, फ्री में है बिल्कुल। इन तीनों ऑथर बहुत ट्विटर में बहुत एक्टिव हैं, ये तीनों ऑथर। आप ट्विटर में जाके इनको फॉलो कर लें और इनके जो आर्टिकल्स हैं वो पढ़ लें, या जो ये लिखते हैं वो पढ़ लें। तो ये तीन किताबें रेकमेंड करूंगा। और फ्रॉम अ यूट्यूब चैनल भी जो 3-4 जो पॉडकास्ट हैं, यूट्यूब चैनल हैं, वो बहुत कॉमन और फेमस हैं। एक है एक रॉबर्ट ब्रीडलव करके बंदा है, उनका एक पॉडकास्ट चैनल है, वो उनका नाम है व्हाट इज मनी शो। तो व्हाट इज मनी शो एक है, वो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप देखें। एक पीटर मकॉर्मिक करके बंदे हैं, वो एक और शो, उनका यूट्यूब शो प्लस पॉडकास्ट भी है, व्हाट बिटकॉइन डिड। तो WBD करके है, वो डिफरेंट पीपल को लेके आते हैं और वो WBD एक देखते हैं। एंड फ्रॉम पीपल दैट आई वुड रेकमेंड कि एक माइकल सेलर जो हैं, वो बहुत क्लियर ओपोनेंट हैं, और वो उन्होंने अपनी कंपनी के $500 मिलियन 2020 में, एंड इमेजिन करें 2020 में उन्होंने पहली बार बिटकॉइन को समझा, और विद इन समझने के 6 महीने के अंदर उनकी कंपनी के $500 मिलियन फुल ट्रेजरी को उन्होंने बिटकॉइन में कन्वर्ट कर दिया। एंड वो 2020 में उन्होंने वो एक्शन लिया, और उस समय से अभी तक उनकी कंपनी की वैल्यू 25 to 30x बढ़ चुकी है, और उनकी ट्रेजरी की वैल्यू जो है वो $5 to 6 बिलियन हो चुकी है। सो ये एक ये couple of people that I would recommend, and I think it's a journey and it's a endless rabbit hole। जब आप इसमें जाएंगे तो आपको और लोग यहाँ से डिस्कवर होंगे, और and you will enjoy the journey। भाई यार, वो स्टेप 1 की ही दिक्कत मोस्टली रहती है कि यार चालू कहाँ से करूं, वही नहीं समझ में आता है। सो आई विल चेक आउट दीज बुक्स, इनके लिंक्स वगैरह अगर मेरे को मिलते हैं, वेबसाइट्स वगैरह, बिल्कुल add all of that in the description of the video for those who are watching। So fair enough from the company and the starting point। अब मैं अगर जैसे तुमसे पर्सनली पूछूं about, so let's say skin in the game वाला जो फिनोमेना है, अगर तुम अपना पोर्टफोलियो अगर आज की डेट में देखते हो, what part of your own personal portfolio, say for example from my personal portfolio, I am more or less in the skeptic domain, and that's why I have 1-2% in Bitcoin। What would be those numbers for you? करेक्ट। तो मेरा जो लिक्विड पोर्टफोलियो की मैं बात करूंगा, तो मेरे लिक्विड पोर्टफोलियो में क्या है कि कुछ एक बार अगर रियल एस्टेट हटा दें, कि जिस घर में मैं रहता हूँ वो रियल एस्टेट अगर हटा दें, और रियल एस्टेट तुम रखेगा ना, तो तुम्हारा किसी भी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट्स के नंबर्स बहुत बड़े हैं। करेक्ट। तो रियल एस्टेट अगर हटा देते हैं तो हमारे पास सिर्फ 3 ही टुकड़े हैं। एक है, मैंने अमेजोन में नौकरी करी थी, तो उसके जो शेयर्स मिले थे वो है एक कंपोनेंट। तो 7 साल वहां नौकरी करी थी, तो उसके शेयर्स मिले थे। हिंदुस्तानी माइंडसेट के हिसाब से वो शेयर्स बहुत ही कम बेचे हैं और पड़े हुए हैं, तो वो एक पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो है। दूसरा है कि मैं हमेशा अपने अकाउंट में 1 साल का कैश रखता हूं, कि 1 साल मेरे अगर कोई भी कमाई नहीं हो महीने की, तो मैं 1 साल तक अपने परिवार का ध्यान रख सकूं, तो वो 1 साल का कैश है। एंड देन तीसरा एलिमेंट है एवरीथिंग एल्स इज बिटकॉइन। अच्छा, मतलब पूरा फुल। So there is only one asset that I have, which is from a distribution perspective,
this number is upwards of 60% of the liquid money is Bitcoin. So there is Amazon shares, there is Bitcoin, and there is 1 year of physical cash which is available. हाँ मतलब तो ये तीन चीजें हैं और कुछ नहीं हाँ है. मतलब ऐसा नहीं है कि अपना S&P 500 के अंदर जो है वो स्टॉक्स के अंदर लगा हुआ है या और भी आजकल तो खैर काफी सारे ऑप्शंस आ गए हैं, एफडीज हैं, बॉन्ड्स हैं. तो कैश वाला कंपोनेंट है वो एफडी में होगा तो वो एफडी में होगा. तो कैश कंपोनेंट जो है वो थोड़ा एफडी में होगा और थोड़े उसके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो जीसेक होते हैं वो होंगे. तो वो मैं कैश कंपोनेंट को इन द बैंक होगा एंड वो एफडी में होगा. एंड देन देयर इज ओनली वन इन्वेस्टमेंट विच इज देयर विच इज बिटकॉइन. Fair. So I think that puts you very clearly in the maxi category that we talked about. तुम अपना सब कुछ उसके अंदर लगा के रखे, and it's kind of nice कि अगर तुम काम कर रहे हो with the idea that getbit.in and you are telling people to buy Bitcoin to that extent कि अगले 10 साल में सबके पास में थोड़ा बहुत होगा ही होगा, तो तुमको तो मतलब अपना बल्क उसमें लगा के रखना चाहिए. So that's indeed pretty good that you have done that. And I believe on that note, we will wrap up today's session. I'd like to thank you for coming and joining us. And more than that, thank you for sending me the T-shirt. ये T-shirt के लिए क्रेडिट मैं अपने दोस्त प्रतीक को देना चाहूँगा जिसने मेरे को और अभय को इंट्रोड्यूस करवाया था. But so thanks for all that. Thanks for coming to the show. And hopefully we should do this again a year down the line to see how the Bitcoin journey has moved. For you, for me. बिल्कुल रवि, बिल्कुल. Thank you so much, Ravi, for the opportunity. My simple message or request for all your listeners will be: get started on this wherever you are, whether you are on a denier or a skeptic. And अगर आप and any amount, there is no barrier on this. जो आप कॉफी पीते हैं या एक किसी दिन बियर या ड्रिंक्स के लिए अपने फैमिली के साथ कहीं खाना खाने जाते हैं, आप ये मान ले कि वो आपने स्टार्ट डाल दिया है. जैसे ही आप कुछ डाल देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है उस चीज के बारे में. तो वो आप अपना इनर्शिया सिर्फ इस कॉन्वर्सेशन को सुन रहे हैं अगर तो भी स्टार्ट कर लें. एंड डोंट लीव. मैं टोनी रॉबिन्स को फॉलो करता हूँ और वो ये बोलते हैं कि डोंट लीव अ साइट और अ प्लेस ऑफ इंटेंट विदाउट टेकिंग एनी एक्शन. सो माय रिक्वेस्ट विल बी, आप जो भी साइट, अगर आपके पास कहीं अकाउंट है तो आप वहां जाके स्टार्ट हो जाएं. अगर आपके पास नहीं है तो आप गेटबिट में अकाउंट खोलें. इट विल टेक 5 minutes एंड गेट स्टार्टेड. देखते हैं, जिंदगी बहुत लंबी है. I will join you somewhere on the road. So once again, thank you, Abhay. Thanks a lot for coming to the show.